नमस्कार। संस्कार भारती, नटनम स्टूडियो फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स और संस्कृता फाउंडेशन की ओर से मैं शुभदा वराडकर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। भारत के महान सुपुत्र स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस कल 12 जनवरी के दिन संपूर्ण भारत में युवा दिन के रूप में मनाया गया। स्वामी जी का व्यक्तित्व हमें श्री राम का अस्तित्व दर्शाता है। जह विवेक तह राम। आज हमारी ये नृत्य आराधना युवाओं के प्रेरणा स्रोत श्री राम के चरणों में समर्पित है। भगवान श्री राम को समर्पित इस नृत्य आराधना की शुरुआत हम करते हैं नृत्य जगत की महान नृत्यांगना और विदुषी पद्म भूषण डॉक्टर श्रीमती कनक रेले जी के आशीर्वाद पर संदेश से। मुंबई स्थित नालंदा नृत्य महाविद्यालय और नालंदा संशोधन केंद्र की संस्थापिका और संचालिका डॉक्टर कनक रेले ने विश्व में मोहिनी अट्टम नृत्य शैली का प्रसार और प्रचार करने का विशेष कार्य किया है। उनके कई प्रबंधों ने और नृत्य रचनाओं ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला को समृद्ध किया है। Namaskar, dear friends. Today I have the privilege of speaking on Sri Rama. Sri Rama was so dear to us, to our culture, and he is the Maryada Purusha. He has set for us certain guidelines which even today, after thousands of years, we want to follow for a good life. Sri Rama also features very prominently in the field of classical dance, and there also I have had the privilege of choreographing a number of dance items involving Sri Rama woven round him, and especially certain episodes from the Ramayana. And every time I get absolutely immersed in the beauty of what is Lord Rama to us. You know, while I was just talking to somebody a few minutes ago, and something happened, I was like, Hey Ram. Why do we say Hey Ram? Because for everything, today our lives are, after these thousands of years, God knows when was Rama existing, when was he? Is he a myth? I don't think he is a myth. He is definitely a historical item. But we have woven so many of our ideals, so many of our principles, so many things, facets of our lives in India. And round Sri Rama, his steadfastness, his loyalty to his parents, his loyalty to his wife. In those days, in Rama's era, a man could have so many wives. He had taken the vow of Eka Patni, and that vow we still cherish over here. When I started choreographing classical dancing, and I had the privilege of learning Kathakali from one of the greatest gurus, Guru Karunakar Panikar, I should say Panchali Karunakar Panikar. And he kept on telling me, he was a Malayali, but he kept on telling me, tum Ram padho, tum Ram socho, Ram tha, bahut bada. Now he also, and I asked him, Guruji, how do I represent Rama on the stage? And he said, Shantam hona chahiye. Shantam Rama Shantam tha. Aur Premam tha. Rama had prem, Rama had shanti, and I think that is what all of us so badly require today. When I start dancing and if I am presenting Sri Rama, I have got, I do Bhavayami Raghuramam, Pavya Suguna Ramam, Bhavu Kavitarana Para Pamgalila Lasita, the great creation. And there are so many characters, and when I was younger, I enjoyed presenting those. And I always found, I went to my Guruji, and I asked him, Guruji, शूर्पणखा करती है तो ठीक है, वो तो अति घोर है, शूर्पणखा वचनागत खरा निहरम, तो वो शूर्पणखा तो मैं करूँगी,
and Bali करूँगी, Anjaneya करूँगी, मतलब I'm saying Anjaneya, Hanuman ji. I would do that. Guruji, Shri Rama को कैसे मैं करूँ? One day he was in a very good mood and he said, तुम्हारा इधर है ना, इसको निर्मलम करो. This is what Rama is. That when you start, I pray, I do prayers in the night, I do prayers in the morning. And the major thing for me is, when I think of Sri Rama, I want that peace. Because he is the one who grants peace to us. Peace to us in India. But I would say he grants peace everywhere. I have seen Sri Rama being worshipped in Southeast Asia. I have seen those beautiful temples, and everywhere Sri Rama is there. The carvings are in their style, doesn't matter. What I am trying to tell you is the Rama principle, which today we cannot forget. I am an elderly person, I am a guru, and I would like to tell all the youngsters in this world, remember one thing, Rama's goodness, Rama's love, Rama's loyalty, and he used to subdue himself. He listened to his father. He cherished his mother, his wife. Why did he relinquish his wife? I used to be very angry. I said, he cannot do that. How can I worship this man who threw away his wife? Later on, much later, when I started reading, it broke his heart. And when there was that huge puja being done, he made the likeness of Sita ji in gold, and he installed that next to him. He didn't take another wife at all. So this concept of Eka Patni, when today everybody is jumping here and there and everywhere, that one ideal we must keep in our minds, and then to speak truth. That is one thing. That is another thing that we must have. And what do you learn from his love for Hanumanji? Do you know something? I worship Hanuman daily. I do prayers and I recite Hanuman Chalisa. But who was Hanuman, and do you know what it means? Rama called Hanuman his dear friend. And Hanuman was so dear to Rama, so very dear to Rama. What does it say? It shows the greatness of your country and greatness of the entire thought process of our culture. And that is that for people like Sri Rama, Hanuman was a monkey. Was he monkey? No. Because he had blessings of Sri Rama, and his virtues were so great that Rama called him his dear Hanuman. Now this is the greatness. This greatness you must understand, and from here you must draw your conclusions that Hanuman can be a monkey, but the love and respect that we must have for every creature in this world. This is what I learned. I learned from Ramayana. And whenever I have the occasion to read some episode of Ramayana, something of the Ramayana, I keep on thinking, what an ocean of love Sri Rama was. That love flowed for everybody, and that love flowed for Hanumanji also. Hanumanji was a monkey, but no, he installed Hanuman as his dear friend. And this shows the greatness of your culture, Indian culture, which tells you that nobody is high, nobody is low. Even like a great God for us, Sri Rama, he called Hanuman his friend. And this is what we should learn. We have to learn this, we have to embrace them, and then we have to bless everybody. Sri Rama did not distinguish between people and people. He loved people, and he loved this country, he loved the culture. And this is what my message to all the young people is that when you think of Rama at night, when I go to sleep, I sleep very late, but I do certain meditation, and daily I say Sri Rama, Sri Rama, Sri Rama. I take his name, seek his blessings, and then go to sleep. Because that is what I feel, that I want to be purified. I want to be purified. I have gone through so many awful instances during the duration of one day. I have met people, I have disagreed with people, I have agreed with people, there have been problems, everything. But I feel that I deserve to have peace when I go to sleep.
I don't want to carry that terrible burden of worldliness. And today's world is really very, very bad. And in this bad world, which is going from bad to worst, our prayers for Sri Rama at Sri Rama's feet, and pray to him that our country, the Lord Rama, Bharat is yours, and please save Bharata and bless all of us. Jai Shri Ram. भारतीय शास्त्रीय नृत्य हमारी संस्कृति की ऐसी धरोहर है जिसमें हमारे संस्कृति की विविधता में एकता प्रतीत होती है। हमारे देश में 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं, लेकिन उनका स्रोत नाट्य शास्त्र में है। माना जाता है कि भरत मुनि ने 3री शताब्दी से पहले नाट्य शास्त्र लिखा था। इसी नाट्य शास्त्र में एक नृत्य शैली का उल्लेख है, औद्र मगधी, जो ओडिसी नृत्य के रूप में अब विश्व में प्रसिद्ध है। अगली प्रस्तुति है ओडिसी नृत्य शैली में सीता हरण प्रसंग, जिसे प्रस्तुत कर रही है श्रेया सभरवाल और मिताली वराडकर। श्रेया सभरवाल ने कथक नृत्य की शिक्षा महान नर्तक एवं गुरु दिवंगत बीरेश्वर गौतम से ली। ओडिसी नृत्य की शिक्षा उन्होंने गुरु श्रीमती शुभदा वराडकर से लेकर ओडिसी नृत्य के क्षेत्र में अपनी विशेष जगह बना ली है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद तथा दूरदर्शन की वे मान्यता प्राप्त कलाकार है। फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए इन्होंने कई बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है। मिताली वराडकर ने नृत्य की शिक्षा गुरु श्रीमती शुभदा वराडकर से ली है। कई प्रतिष्ठित महोत्सवों में विशेष प्रस्तुति से उन्होंने प्रशंसा पाई है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद तथा दूरदर्शन की वे मान्यता प्राप्त कलाकार है। फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए इन्होंने कई बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नृत्यांगना होते हुए मिताली एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैराक यानी स्विमर है। ब्रिटिश चैनल, रॉक ऑफ जिब्राल्टर जैसे कठिन समुद्र उन्होंने पार किए हैं और महिला स्विमिंग के क्षेत्र में विशेष जगह पाई है। मिताली वराडकर और श्रेया सभरवाल भारतीय शास्त्रीय नृत्य ओडिसी के ये 2 उभरते हुए तारे अब प्रस्तुत कर रहे हैं रामचरितमानस से सीता हरण प्रसंग।
सुंदर छाया सत्य संग प्रभु बधि करे आनहु चर्म कहती वैदे सब रघुपति जानत सब कारण उठे हर्षि सुर काज सवार मृग बिलो की कटी परिकर बांधा कर तन चाप रुचिर सरसांधा प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाई निरत विपिन निजन बहु भाई सीता के करहु रखवारी बुद्धि विवेक बल समय विचारी सोन बीच दश कंधर देखा आवा निकट जति के वेशा करि अनेक विधि छल चतुराई मांगे भीख दशानन जाई कहे दशमुख सुन सुंदर नाम
तुलसी रामायण में नवधा भक्ति के बारे में श्री राम कहते हैं कि भक्ति के 9 प्रकारों में से सबसे सरल है सत्य एवं ईमानदारी के आचरण का और भगवान पर भरोसा रखने का। नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसह्य हर्षन देना। समाज में उत्तम आचरण का सरल रास्ता है जीवन में प्रामाणिकता और प्रभु पर विश्वास। कोई भी विपदा हो, अंतिम विजय प्रभु का ही है। श्रेया सभरवाल और मिताली वराडकर प्रस्तुत कर रहे हैं श्री रामचरितमानस की रचना, जिसमें लंका दहन कर सीता माँ को लेकर लौटे श्री राम के विजय का उत्सव मनाया जा रहा है।
भगवान श्री राम, भक्ति, ज्ञान, सदाचार के प्रतीक श्री राम का भारतीय कला जीवन में अलौकिक प्रभाव है। श्री राम के आदर्शों से प्रेरित होकर उनके दिखाए राह पर चलने से हमारे देश के युवाओं का भविष्य प्रातःकालीन सुबह की भांति उज्जवल होगा। संपूर्ण भारत के आराध्य श्री राम का संपूर्ण जीवन ही एक आदर्श संदेश है। इस संदेश के मनन अनुशीलन से संपूर्ण जगत मंगलमय होता है। नृत्य आराधना में श्री राम का कल्याणकारी संदेश प्रस्तुत करने आ रही है कथक नृत्य की महान गुरु डॉक्टर मंजिरी देव। डॉक्टर मंजिरी देव पिछले कई दशकों से कथक नृत्य की आराधना कर रही हैं। अनेक पुरस्कारों से विभूषित मंजिरी जी ने हजारों शिष्यों को नृत्य की शिक्षा देकर कथक नृत्य का प्रसार किया है। अपनी अनोखी शैली में उन्होंने कथक नृत्य पर अनेक पुस्तकें लिखी है। प्रस्तुत है महान गुरु एवं विदुषी मंजिरी देव द्वारा श्री राम गुणवर्णन। आजचा हा समारंभ जो आहे गुरु गोपीजींच्या स्मरणार्थ सुरू केलेला, तर आज मी ज्या वेळेला मी त्यांच्याकडे जटायू मोक्ष शिकले त्याच वेळेला जटायू मोक्ष नंतर शिकवण्यासाठी त्यांनी मला लंका दहन ही रचना दिली होती आणि ती मला त्यांनी शिकवायला सुरू करण्याच्या सुमारास ते हे जग सोडून गेले आणि मग ती तशीच राहिली होती आणि कदाचित काय माहिती उचित काळ यावा लागतो आणि ती रचना या 25व्या गोपीकृष्ण महोत्सवामध्ये मी त्यांचे चरणी समर्पित करण्यासाठी त्यांच्या स्मरणाने बसवलेली आहे। मला असं वाटतं की गुरुनी प्रत्येक घास भरवावा लागत नाही। त्यांनी आपल्याला कला दिल्यानंतर त्या परंपरेचा वसा घेऊन त्यांनी दाखवलेल्या पायवाटेवरून ते त्यांनी जसं आपल्याला कला दिली आहे त्या कलेचा वारसा आपण तसा पुढे नेण्याचा प्रयत्न करायचा असतो। मी हे व्रत घेतलंय, माझ्या विद्यार्थिनी घेत आहेत। आज मी आपल्यासमोर ही जी लंका दहन ही कथा रामायणातली आहे। सगळी लंका दहन करून आपलं काम पट्टे करून हनुमान पुन्हा रामाच्या जवळ परत येतो। तर गुरुभक्ती दास्यभक्ती ह्याचं अत्यंत उत्तम असं उदाहरण असलेला, खरं म्हणजे सर्वार्थाने श्रेष्ठ असलेला महाप्राण हनुमान, जो आजही आपल्यात चैतन्याच्या रूपाने उपस्थित आहे, तो आजही आहे, कारण तो त्याला अमर आहे। आणि त्यामुळे अशीच गुरुभक्ती रामभक्ती आणि माझी सतत राहू दे आणि त्यांची दास्यभक्ती अंगात येऊन ती विनम्रता मला मिळू दे, अशी मी प्रभू हनुमंतांच्या चरणी प्रार्थना करते। माझ्या सर्व गुरुजनांचं स्मरण करून इथल्या सर्व गुणीजनांना नमस्कार करून मी माझ्या कुवतीनुसार आणि माझ्या वयाला झेपेल अशा प्रकारे नृत्य सादर करते। पहा लंका दहन। पर्वत पर्वत बन बन
ढूंढ कर हारे, कहीं न सीता मिली, भटकते सुमेरु पर वे पधारे। देख वहाँ एक अद्भुत प्राणी, कर न सके कुछ भी अनुमान। देख वहाँ एक अद्भुत प्राणी, कर न सके कुछ भी अनुमान। मेरे प्रभु का नाम राम है, मैं उनका सेवक हनुमान। चरणों में नत श्रद्धा से भर, पवन पुत्र यो बोले। ऐसी निर्मल भक्ति देख, प्रभु मंत्र मुग्ध हो डोले। जा पहुँचे सुग्रीव पास, बाली की सुनी कहानी। जिसने राजपाट भाई पत्नी हर की नादानी। और सुग्रीव बोले, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि आप बाली को मार सकेंगे। हां, अगर आप इन 7 वृक्षों को एक ही बाण से वेद डाले तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप बाली को मार सकते हैं। और भगवान राम ने एक ही बाण से 7 वृक्षों को वेद दिया। और सुग्रीव को विश्वास हो गया। भिड़ा सुग्रीव बाली से जाकर, प्रभु, मुझसे युद्ध नहीं होगा, मेरी तो कमर ही टूट गई है। आप ही कोई उपाय करें। और प्रभु राम के कहने से सुग्रीव ने बाली के साथ फिर से युद्ध शुरू किया। सुग्रीव को पहचानने के लिए गले में माला पहनने का सुझाव दिया। रूप रंग में दोनों भाई दिखते एक समान। माला से प्रभु शत्रु मित्र की कर पाए पहचान। बाली का वध हुआ, बाली का वध हुआ। बाली का वध हुआ और सुग्रीव को सब अधिकार प्राप्त हुए। अब प्रभु राम की सेना में सुग्रीव, अंगद, जाम्बुवंत और वीर हनुमान वानर सेना सहित
सम्मिलित हुए। ले प्रभु की मुद्रिका, पवन सुत गए समंदर पार, पवन सुत गए समंदर पार, पवन सुत गए समंदर पार। उड़ते उड़ते दिखी उन्हें सोने की नगरी लंका, जहाँ शांति के लिए बजेगा धर्म युद्ध का डंका, धर्म युद्ध का डंका, धर्म युद्ध का डंका। लंका में पहुंचते ही हनुमान जी सीता मैया की खोज में भटकने लगे। बनवाग उपवन बाटिका सर, उप पापी सोहरे, नर नाग सुर गंधर्व, कन्या रूप मुनि मन मोहनी। मंदिर मंदिर प्रति करी शोभा, देखी जहत अगणित जोधा। आखिर हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे। सभी राक्षसियों के बीच बैठी दुखी सीता मैया को हनुमान जी ने पहचान लिया। हनुमान जी ने वृक्ष के ऊपर से मुद्रिका सीता माता की गोद में फेंकी। सीता माता ने मुद्रिका देखी और कहा, ये मुद्रिका तो मेरे भगवान की है। इसे कौन लाया? इसे कौन लाया? मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ। तो बजरंग ने सामने आकर मां को प्रणाम किया और सीता मैया ने अपना चूड़ामणि उन्हें दिया। फिर पवन पुत्र ने कहा, मां, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। यदि आज्ञा हो तो कुछ फल खा लूं। और उसके बाद उन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। धेट 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 ना धेटे ता न ता, त्रगे न धागे त्रक धेत्ता त्रक धेत्ता कत्ता धाम धाम दृगधा 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 त्रिकता 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 धूम धाम लूम लाम फटक झटक हटक्यो तब भटक्यो तब चढ़ो वीर हंका, हे डंका हे रावण को शंका, कभी कूद पड़ो लंका में। चल तो रथ झक जो रथ सर भो रथ भट मो रथ लंगूरन लय उजाल पहुंचा कभी निकट मातु जानकी। प्रभु मुद्रिका श्री राम की हनुमंत ने प्रदान की। प्रभु मुद्रिका को लगी लगी भई चकित मातु जानकी। अष्ट सिद्धि नवो निधि मातु ने प्रदान की, मातु ने प्रदान की। भयो पवन अनन्यास तन नन नन सन नन, अग्नि फैल गयो आकाश घन घन नन घन घन तन न सन न घन न घन न धाकृत धूमकृत धाकृत धूमकृत धा धाकृत धा धाकृत धा धाकृत धा न धाकृत धूमकृत धाकृत धूमकृत धा धाकृत धा धाकृत धा धाकृत धा न धाकृत धूमकृत धाकृत धूमकृत धा धाकृत धा धाकृत धा धाकृत धा। एक वानर के ये भयंकर उत्पात की खबर लंकापति रावण तक पहुंच गई। तब रावण पुत्र मेघनाथ आए और
ब्रह्मास्त्र से अंजनी पुत्र को बांधकर रावण के पास ले गए। ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखने के लिए पवन पुत्र हनुमान बंदी हो गए। रावण ने आज्ञा दी कि इस पूंछ में आग लगा दो। सुनी के बाद पूछ में धधकी भीषण ज्वाला, पल में लंका राख हुई, रावण का हुआ बेहारा, रावण का हुआ बेहारा। हनुमान जी ने राम के पास आकर सीता जी का चूड़ामणि अर्पण किया और उनको प्रणाम किया। जय हनुमान महान, ज्ञान गुण के अधिकारी। जय हनुमान महान, ज्ञान गुण के अधिकारी। जिनकी कीरति बिरति राम सिय सोवति प्यारी। जय हनुमान महान, ज्ञान गुण के अधिकारी।